Hello students, this is your social science teacher. Today we will discuss the new chapter of history, that is the chapter number 8, development of the first empire. And this is the first part of the video. Okay. In this chapter you will study how the Mahajanpads of Magadha become the center of India's first empire. Magad not only established control over the other Mahajanpads but also drew tributes from remote regions beyond the Mahajanpads. It thus became the center of an empire whose military strength was acknowledged by all and nobody dared to challenge it. इस चैप्टर में हम लोग महाजनपद मगध के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि उसने कैसे दूसरे महाजनपद पर कंट्रोल कर लिया और उसने शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के एरिया पर भी जो महाजनपद से दूर थे उनको भी कैसे कंट्रोल किया और कैसे उसने मिलिट्री शक्ति के बल पर सबको अपने अधीनता को स्वीकार कराया. Like many other kingdom and empires, the empire of Magad was established by a dynasty, that is a series of rulers belonging to the same family. This dynasty is known as the Maurya dynasty. The Maurya empire began to take shape shortly after an invasion by Alexander the Great, who came from Macedonia near Greece. दूसरे किंगडम की तरह भी जो है मगध जो है वो एक डायनेस्टी थी. डायनेस्टी का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ रूलर्स जो एक ही कुल और ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और उस पर राज करते हैं, उसको डायनेस्टी बोला जाता है. ठीक है, तो डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के जो मगध की डायनेस्टी थी उसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी. तो मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो अलेक्जेंडर जो सिकंदर के आक्रमण के समय वो प्रकाश में आई, मतलब उस समय स्थापित हुई. और हु के जो अलेक्जेंडर था वो मैसिडोनिया से आया था जो ग्रीस के नज़दीक में कंट्री है एक. Alexander's invasion. Alexander the Great of Macedonia invaded northwestern India in the 4th century BC. When the nuns were ruling over Magadh, he conquered some small kingdoms and reached the river Bias. He could not advance beyond the Bias because he tried soldiers was afraid to face the war elephant of mighty Magadh army. Alexander decided to return. अलेक्जेंडर जो था वो मैसिडोनिया से एक आक्रमणकारी था जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया में 4th सेंचुरी बीसी में आया था और उस समय मगध में नंद डायनेस्टी थी और उसने छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों को विजिट किया, बट ब्यास रिवर से आगे वो नहीं बढ़ सका, पंजाब के आसपास के आगे वो नहीं बढ़ सका क्योंकि उसके जो सैनिक थे वो नंद की शक्ति से डर गए थे. बाद में सिकंदर ने वापस जाने का विचार किया. Before leaving India, Alexander installed Greek governors in the conquered territories in northwestern India. Alexander invasion paved the way for the rise of the Mauryas. इंडिया को छोड़ने से पहले जो अलेक्जेंडर था उसने ग्रीक गवर्नर्स जो अपने विजित प्रदेश थे उसमें ग्रीक गवर्नर्स को नियुक्ति कर दिया था और अलेक्जेंडर के इन्वेजन से ही मौर्यन डायनेस्टी प्रकाश में आई. The Mauryan Empire Foundation. Around the time of Alexander's invasion, one of the Nand's ruler who was unpopular for his cruelty forced Chandragupta, a brave warrior of the Maurya tribe, to leave Magad. Chandragupta took refuge in northwest India. Here he met the wise Brahman Chanakya, also called Kautilya. Chanakya was the author of Arthashastra, a book about how a government should he run. ओके, तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय जो नंद डायनेस्टी का जो राजा था वो जनता में बहुत ही अनपॉपुलर था अपनी क्रूरता के लिए. ठीक है, तो उस चंद्रगुप्त ने उसको फोर्सफुली उसको राजगद्दी से हटा करके और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर दिया था. तो चंद्रगुप्त ने की सहायता एक कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण ने किया था जिसको चाणक्य भी कहा जाता था. चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी जो कि शासन सत्ता पर आधारित एक बुक है कि कैसे एक राजा अपनी प्रजा का शासन चलाए. विद द चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्ता ओवरथ्रू द नंदास एंड एस्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी इन
321 BC. The Mauryas had their capital at Pataliputra. The three most important rulers of their dynasty were Chandragupta Maurya, his son Bindusara, and Bindusara's son Ashoka. चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को नष्ट कर दिया और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना 321 बीसी में किया। मौर्य ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में बनाया और इस डायनेस्टी में तीन बहुत महत्वपूर्ण रूलर हुए, शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। Chandragupta conquered the territories covering modern Afghanistan from their Greek ruler Seleucus Nicator. Seleucus later sent his envoy Megasthenes to Pataliputra. Megasthenes wrote an account of his experience in India. चंद्रगुप्त ने जो टेरिटरी अफगानिस्तान तक लगती थी वहाँ पर उसको विजिट किया। उसके टाइम पीरियड में भी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त ने उसको पराजित किया था। बाद में सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो इंडिया था उसके बारे में बहुत अच्छा अकाउंट लिखा है। चंद्रगुप्ता एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द डेक्कन. बिंदुसारा extended the Mauryan empire southwards up to Mysore. Ashoka's empire extended roughly from the Hindu Kush and the Himalayas in the north to the river Pennar in the south. चंद्रगुप्त जो था उसने अपने साम्राज्य को बिहार से लेकर के पूरे पूर्व राज्यों में गंगा के प्लेन तक फैला रखा था। उसका साम्राज्य मध्य भारत और डेक्कन में भी था। बाद में बिंदुसार ने मौर्यन डायनेस्टी को और एक्सटेंड किया और अपनी डायनेस्टी को मैसूर तक लेके गया। और अशोका के साम्राज्य में तो डायनेस्टी और ज़्यादा फैल गई और उसका साम्राज्य हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नॉर्थ में हिमालय और साउथ में पेन्नार रिवर जो कि केरल के आसपास कर्नाटक में बहती है वहाँ पर तक फैला हुआ था। अशोका Emperor Ashoka is remembered as one of the greatest rulers in India. Historians learned about Ashokas from inscriptions on pillars and rocks. Okay, found in various parts of India. Okay, Emperor अशोक के बारे में तो एक महान राजा के रूप में इसको जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहासकार लोग इसके बारे में जानकारी का जो स्रोत बताते हैं वो इसके रॉक्स हैं, जो इसके अभिलेख पत्थरों पर लिखी गई जो मैसेज हैं उससे पाते हैं। For a long time, most of the inscriptions could not be read as they were in a script that had gone out of use. A scholar named James Prinsep deciphered the script and identified it as Brahmi. The inscription provided invaluable information about the region of a kind ruler named Ashoka and the extent of his empire. बहुत सारे जो अभिलेख हैं अशोक के वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं क्योंकि उसमें जो लिपि का उल्लेख हुआ है वो अब आउट ऑफ यूज़ है, उसका यूज़ अब नहीं किया जाता है। ओके, और एक अंग्रेज़ थे जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने पहली बार इस लिपि को आइडेंटिफाई किया अशोक के अभिलेखों की और उन्होंने उसके बारे में बताया कि अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वार। Ashoka attacked and conquered Kalinga, modern Odisha. Thousands on both sides were killed and wounded during the Kaling War. The bloodshed and the wailing of widows and orphans completely changed Ashoka's attitude towards expansion through war. He gave up war and adopted the path of peaceful conquest. He called this new policy धम्म विजय। अशोक ने कलिंग में उड़ीसा में एक स्टेट पड़ता था कलिंग, जहाँ पर उसने अटैक किया उसको अपने साम्राज्य में लाने के लिए, बट उसमें ब्लड सेट वार हुआ, मतलब खून से रचित खून से रंगा हुआ वार हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग औरतें विधवा हो गईं। तो इसको देख करके अशोक का जो हृदय था वो बदल गया। ठीक है, बाद में उसने वार करने की जो स्ट्रेटजी थी उसको छोड़ करके एक नई वार स्ट्रेटजी अपनाया जिसको बोलते हैं धम्म विजय। अशोकास धम्म। व्हाट वाज अशोकास धम्म? अशोकास धम्म क्या था? द वर्ड धम्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी. अशोकास धम्म वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड वाज बेस्ड ऑन टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स.
इट्स मेन प्रिंसिपल वार। अशोका का जो धम्म था वो धर्म शब्द से डिराइव्ड है, संस्कृत का वर्ड है, और उसका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेट करता था, जिसमें टॉलरेंस, सहिष्णुता की नीति थी, अहिंसा और बड़ों का सम्मान करने की बात उसमें कही थी। उसके जो मुख्य प्रिंसिपल्स थे, मुख्य सिद्धांत थे, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मोनी, लोगों को शांति और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। दे शुड शो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, दूसरे धर्म, जातियों और संप्रदाय के प्रति लोगों को सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट दियर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मास्टर शुड बी काइंड ऑफ दियर सर्वेंट, ओके, जो मालिक हैं अपने नौकरों पर उनको दया करनी चाहिए। पीपल शुड फॉलो अहिंसा एंड नॉट किल एनी लिविंग बींग्स, लोगों को अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। अशोका's practiced धम्म in his own life and in ruling his kingdom. He discontinued warfare and undertook many welfare measures. अशोक ने बहुत सारे धम्म को अपनी लाइफ में अशोक ने जो धम्म की नींव चलाई थी उस पूरे साम्राज्य में फैलाया, और लोगों ने उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल भी किया। ओके, एफर्ट टू स्प्रेड धम्मा। तो हम लोग इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग धम्म के बारे में और भी आगे जानेंगे। थैंक यू।